I hope you all are good and we'll be starting. Good, very good. So, as we were discussing yesterday, that there are few types of techniques, there are a few types of trends that we see in time series, in a time series data. Now, we have seen that there is one called as random variation. Random variation is something which is caused by irregular and unpredictable changes in a time series. Irregular and unpredictable, so not repeatable. Unpredictable, irregular, that is not regular, so not predictable. Okay, you cannot predict that. Unpredictable changes in a time series that are not caused by any other components. It tends to mask the existence of other more predictable components. तो जो हमारे काम के लीनियर ट्रेंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले, सीजनल और साइक्लिकल, ये सारे इनको ये जो है वो हाइड कर सकता है. Therefore, we apply smoothing techniques to counter the effect of, we try to remove the random variation effect and try to see the if there is any seasonal or long term effect. So what is smoothing? If we can determine which components actually exist in a time series, we can develop better forecasts. Unfortunately, the existence of random variation often makes the task of identifying components difficult. One of the simplest ways to reduce random variation is to smooth the time series. मतलब इस तरीके से है, और कहीं पर एकदम से छोटे छोटे इस तरीके से वेरिएशंस आ रहे हैं रैंडम वाले, तो हम चाहते हैं कि यार ये जो रैंडम वेरिएशन है इसको हम हटा दें. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मूथिंग, स्मूथ करना, ताकि ये रैंडम वेरिएशन हटा के कुछ हमको क्लीन सा ट्रेंड दिखने लगे. ऐसा करने के दो मेथड्स होते हैं. One is moving averages and other is exponential smoothing. Moving averages and exponential smoothing. Coming to moving averages, a moving average for a time period is the arithmetic mean of the values in that time period and those close to it. For example, to compute the 3-period moving average for any time period, we would average the time series values in that time period, the previous period and the following period. जैसे कि आपके पास टाइम स्टैम्प है 1 2 3 4, this could be weeks, months, quarters, anything, 6, so on and so forth. तो इस तरीके से डेटा है आपके पास टाइम सीरीज का 1 2 3 4 5, और यहाँ पर इसका डेटा दिया हुआ है. इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है. अब इसमें अगर हम मूविंग एवरेज निकालें तो उसका इस तरीके से निकालेंगे. 3-पीरियड मूविंग एवरेज निकालें तो ये पहला टाइम पीरियड है 1, दूसरा है 2, तीसरा टाइम पीरियड. तो क्या करेंगे, 3-पीरियड मूविंग एवरेज में क्या करेंगे, पहले 3 का एवरेज ले लेंगे और जो भी वैल्यू आई 25, 28, 29, सपोज करते हैं कि 27 आई, इसको यहाँ लिख देंगे. फिर अगले 3 का एवरेज लेंगे और उसको सेंटर में लिख देंगे, सपोज करिए 28. फिर अगले 3 का, इसका इसका इसका, उसको यहाँ लिख देंगे, सपोज करिए 26. इस तरीके से करते हुए तो जब हम आखिरी तक जाएंगे और आखिरी वाला एक छूट जाएगा, जैसे कि यहाँ पहला छूट गया ना, क्योंकि टाइम
मूविंग एवरेज जब निकाल रहे हैं तो पहला मूविंग एवरेज निकला है पहले 3 आइटम्स का, तो हमने उसको सेकंड के सामने लिख दिया। इसी तरीके से जो लास्ट आइटम होगा उसके सामने छूट जाएगा, यानी 3 पीरियड मूविंग एवरेज में 2 वैल्यूज कम हो जाएंगी, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। अब ये जब इन मूविंग जो हमने नए मूविंग एवरेज निकाले हैं 3 पीरियड मूविंग एवरेज, जब इनको हम देखेंगे तो वो जो हमारी टाइम सीरीज बहुत जिगजैग थी वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई होगी, थोड़ा सा उसमें रैंडम वेरिएशन कम हो गया होगा, तो एक चांस बनेगा कि हमको इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड या सीजनल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। So, as part of an effort to forecast future sales, an operator of 5 independent gas stations recorded the quarterly gasoline sales, है ना? Quarterly gasoline sales को रिकॉर्ड किया in thousands of gallons for the past 4 years, है ना? पिछले 4 साल का डेटा निकाला। Calculate the 3 quarter and 5 quarter moving averages, ठीक है? 3 क्वार्टर और 5 क्वार्टर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करिए। ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ द टाइम सीरीज एंड द मूविंग एवरेजेस, जो भी आपके पास ओरिजिनल टाइम सीरीज है उसको ड्रॉ करिए और जो है मूविंग एवरेजेस को ड्रॉ करिए। सो हमको एक्सेल में हम ये करेंगे और बहुत इजीली जो है एक्सेल में बहुत आसानी से होता है ये। आप अगर डेटा देखेंगे जो आपके पास डेटा है उसमें वो XM2001 करके डेटा, आप एक्सेल में चले जाएं जो डेटा सेट आपको दिया हुआ है XM2001, यानी 20वें चैप्टर का पहला सवाल। XM2001 डेटा में आपको एक गैसोलीन का सेल्स मिल जाएगा, है ना? 4 साल का क्वार्टरली डेटा है तो 4x4 4x4 16 डेटा आ गया। इसलिए अब अगर हमको इसका मूविंग एवरेज निकालना है तो वो जो डेटा आएगा वो पहला छोड़ करके और आखिरी छोड़ करके ऐसा आएगा, ठीक है? यानी 2 वैल्यू कम आएंगी उसमें। चलो तो लेट्स गो अहेड। डेटा एनालिसिस, moving average, data analysis, moving average. So we went to data analysis, M, moving average. Okay, input range. So this is my input range. My input range has labels. Yes, मैंने label भी select किए हैं, ठीक है? इंटरवल यानी पीरियड, तो 3 पीरियड इंटरवल, हम 3 वैल्यूज का एवरेज लेंगे, मूविंग एवरेज लेंगे। चलिए आउटपुट रेंज, ओके, आउटपुट रेंज, ये आउटपुट रेंज हम यहाँ से चाहिए हमें। चार्ट आउटपुट, हाँ चार्ट आउटपुट भी चाहिए हमको। ओके, ये आ गया। तो ये 3 पीरियड मूविंग एवरेज आया है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अब आप ये देखिए, ये जो पहली बात तो ये है कि 2 एन आ गए ना, जो ऊपर नीचे से छूट रहा है, ये देखिए यहाँ सेट हो गया आपका। आप ऐसे देख सकते हैं इसको, पहला छोटा और लास्ट छोटा, ठीक है? 2 वैल्यू कम आ गई, क्यों? उसने जब इस 3 को एवरेज किया तो उसका एवरेज ये आया, इस तरीके से अगले 3 का एवरेज ये आया, सब करता चला गया और आखिरी 3 का एवरेज ये आ गया। तो अक्षय कितने कंप्यूटरों से लॉग्ड इन हो, एक को शट डाउन करो। स्विच ऑफ एनी वन, अक्षय टर्न ऑफ एनी वन। ओके गुड, ठीक है, अभी एक बचा है आपका, ठीक है।
सो ओके, सो ये आपका मूविंग एवरेज 3 पीरियड मूविंग एवरेज निकाल दिया। और उसके बाद आप देखोगे कि जो गैसोलीन की सेल्स है, जो पहले इतना रैंडम दिखा रहा था, बीच बीच में इतनी रैंडमनेस थी, अब थोड़ा स्मूथ पैटर्न आपको दिख रहा है। रेड वाला देखो, ये फोरकास्टेड है, ये मूविंग एवरेज के डेटा से रेड वाला बना हुआ है, और जो ब्लू वाला है वो ओरिजिनल बना हुआ है, सीरीज जो है वो एक्चुअल सीरीज है। ठीक है, अब देखो कि थर्ड क्वार्टर में, है ना, थर्ड थर्ड क्वार्टर में देखो ये बढ़ने लगता है, और फिर देखो सातवें में फिर बढ़ रहा है। यानी हर 3 क्वार्टर के बाद जो है, हर लास्ट क्वार्टर में ये देखो, एक पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऐसे लगातार नाव। अब यहाँ पर एक सीजनल कंपोनेंट आपको दिखने लग गया। ठीक है, और अगर ओवरऑल भी देखना चाहोगे तो इस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक देखोगे तो एक लीनियर उसमें भी आपको दिखा रहा है। तो अगर आप रेड वाले पे किसी पॉइंट पर रख करके ऐड ट्रेंड लाइन करेंगे तो आपको जो एक ब्लैक लाइन दिख रही है, तो यू कैन सी दैट ये ब्लैक लाइन एक ओवरऑल ट्रेंड भी दिखा रहा है जो ऊपर को जा रहा है। राइट, तो इस तरीके से हमने ये 3 पीरियड मूविंग एवरेज निकाला, है ना। अच्छा, इसी में हम क्या कर सकते हैं अब, इसी के बाद दिस वाज मूविंग एवरेज। नाउ व्हाट आई कैन डू इज डेटा एनालिसिस मूविंग एवरेज। डेटा हमारा उतने का उतना ही है। इंटरवल जो है हम 5 पीरियड मूविंग एवरेज करेंगे, यानी 5 वैल्यू का एवरेज होता चला जाएगा, और आउटपुट रेंज जो है हम यहाँ डाल देंगे, चार्ट आउटपुट। ओके, ये देखो, तो क्या हुआ अब इसमें, आप देखोगे कि ऊपर से 4 वैल्यू खाली आ गई। ठीक है, यानी कि ऊपर की 2 छूट गई और नीचे की 2 छूट गई। इसको मैं अगर अभी मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ इसको, लेकिन आप देखो पहली 4 वैल्यू जो है वो खाली हो गई, यानी 2 पहले की 2 बाद की, क्योंकि 5 पीरियड लेना है ना। इसमें पहला आपको वैल्यू मिलेगा, पहले 5 का एवरेज लोगे, 39, 37, 61, 58, 18, और उसका एवरेज निकल के आएगा 42.6। इसी तरीके से अगले 5 का लोगे, 1 2 3 4 5, वो निकल के आएगा 46। इस तरीके से करते चले जाएंगे, और 5 पीरियड मूविंग एवरेज जो है, ये देखिए, एक 5 पीरियड मूविंग एवरेज में हम लोग देख रहे हैं कि ये और जो है स्मूथिंग हो गई है, ये और स्मूथ हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम 7 पीरियड भी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको इंफॉर्मेशन वो स्मूथ करना है तो करते चले जाओगे, नहीं। अगर यही 7 या 9 पीरियड का मूविंग एवरेज ले लिया तो पूरा लाइन फ्लैट जैसी लाइन हो जाएगी, और उसमें आपको कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। जैसे आप 5 पीरियड वाले में भी काफी कुछ दिखना बंद होने लग गया है। जितना अच्छा आपको जो है, ये देखिए 3 पीरियड मूविंग एवरेज में जो रेड लाइन, रेड वाली लाइन है ऊपर वाले चार्ट में, वो कैसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, वो पैटर्न बन रहा है, बड़ा पैटर्न, बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है। रैंडम वेरिएशन हट चुका है काफी सारा। आपने कहा नहीं मैं और हटाता हूँ और स्मूथिंग करूंगा, तो ये आपका 5 पीरियड मूविंग एवरेज आ गया। लेकिन देखो उसमें आखिरी का जो आखिरी की 4 डॉट आ रही है वो देखो एकदम फ्लैट से आ गए, ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन मिस आउट हो गया। तो मूविंग एवरेज निकालेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मूविंग एवरेज में पीरियड बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे जो है आपका इंफॉर्मेशन लॉस भी होता चला जाएगा। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ, कि कहीं बीच में जाकर के, बीच में जाकर के आपको
ये लेना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में हमको 3 पीरियड मूविंग एवरेज से हमारा रैंडमनेस भी चली गई है, हमारी रैंडमनेस भी चली गई है, और हमारी इंफॉर्मेशन में हम बड़ा सीजनल कंपोनेंट भी बड़ा अच्छा सा देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मूविंग एवरेज टेक्निक से स्मूथ करना। हाँ, अब देखो, लेकिन जो क्या हो रहा है जो हमारा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है उसमें दो प्रॉब्लम है। उसमें दो प्रॉब्लम है एक्सपोनेंशियल, जो हमारा मूविंग एवरेज वाली टेक्निक है उसमें दो प्रॉब्लम है। एक, लॉस ऑफ डेटा। जैसे आपका 3 पीरियड मूविंग एवरेज में पहला पहला टाइम पीरियड और लास्ट टाइम पीरियड का डेटा जो है टोटल गायब हो जाता है ना। इसी तरीके से 5 पीरियड मूविंग एवरेज में पहले दो गायब हो जाते हैं और आखिरी दो वैल्यूज गायब हो जाते हैं, 4 वैल्यूज मिस हो जाते हैं टाइम सीरीज से। ठीक है, तो एक लॉस ऑफ डेटा हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप मूविंग एवरेज लेते चलते हो, जैसे आपने पहले 3 का मूविंग एवरेज लिया 1 2 3, ठीक है, इसको यहाँ रखा, फिर अगले 3 का लिया 1 2 3, इसको यहाँ रखा। तो अब जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ते चले जाओगे, आपका टाइम सीरीज पीछे नई वैल्यू में एक पॉइंट के बाद, जैसे जब 1 2 और 3 का डेटा लिया तो यहाँ पे उसका एवरेज आ गया, फिर 2 3 और 4 का लिया तो यहाँ पे आ गया, फिर 3 4 5 का लिया। लेकिन जो अब ये मीन लिया, ये जो एवरेज लिया है, इसमें फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का कोई योगदान नहीं है। इसी तरह से और आगे बढ़े, 3 4 5 के बाद जब हमने 6 7 8 का लिया, उसका कुछ एवरेज आया तो वो और पीछे की वैल्यू भूल गया। मतलब मूविंग एवरेज फॉरगेट्स मोस्ट ऑफ द प्रीवियस टाइम सीरीज वैल्यूज। अपने जस्ट इमीडिएट जो आगे पीछे की वैल्यू है वो तो मूविंग एवरेज याद रखता है, लेकिन जैसे 3 पीरियड से बाहर निकले वो उससे पुरानी वैल्यूज का और उस टाइम सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि कई बार ऐसा होता है कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है, कई बार टाइम सीरीज में इस बात पे फर्क पड़ता है कि हिस्टोरिकली क्या चलता चला रहा है। खासतौर से स्टॉक मार्केट में बड़ा फर्क पड़ता है कि पहले पहले मतलब इतनी रैंडमनेस नहीं होती स्टॉक मार्केट के डेटा में। कई बार यही होता है कि डेटा जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले हफ्ते या उसके 2 हफ्ते पहले बिहेव किया होता है, कई बार उन चीजों को फैक्टर में लेकर के आगे की फोरकास्टिंग होती है। अभी जो है हम सीजनल कंपोनेंट और वो कंपोनेंट अच्छे से देख पाते हैं कि इसके पीछे यहाँ तक ऐसा हुआ है तो आगे ऐसा होता है। लेकिन मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन लॉस कर रहा है, वो पीछे 3 पीरियड या 5 पीरियड से पहले की इंफॉर्मेशन आगे कैरी हो ही नहीं रही है। इसको सॉल्व करने के लिए, इन दोनों प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास एक दूसरा स्मूथिंग टेक्निक होता है विच इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। तो एक्सपोनेंशियली स्मूथ टाइम सीरीज, अब क्या होता है इसमें, ये टाइम सीरीज क्या करती है कि इसमें एक नए टाइम सीरीज की वैल्यू इज डिफाइंड बाय लाइक दिस st, that is exponentially smooth time series at time period t is given by omega yt plus 1 minus omega st minus 1। मतलब omega here 1 minus omega is the damping factor और स्मूथिंग फैक्टर, स्मूथिंग फैक्टर नहीं बोलते, डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। ओमेगा जितना कम होगा, ओमेगा जितना कम होगा स्मूथिंग उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, तो ये टेक्निक क्या कहती है कि इस इक्वेशन में st क्या है, st इज एक्सपोनेंशियली स्मूथ टाइम सीरीज एट टाइम पीरियड t। ठीक है, yt ओरिजिनल टाइम सीरीज है, yt क्या है, वो t इंस्टेंट पर y की वैल्यू, टाइम सीरीज एट टाइम पीरियड t, st minus 1 exponentially smooth time series at time period t minus 1। Omega is smoothing constant where omega is always between 0 and 1. So 1 minus omega is damping constant which is not equal to smoothing constant. ओमेगा इज स्मूथिंग कांस्टेंट, जितना ओमेगा कम होगा स्मूथिंग उतनी ज्यादा होगी। तो अब ये इक्वेशन में जरा ध्यान दो कि मान लो कोई एक टाइम पीरियड एस इक्वल टू 10 के लिए निकालना है, तो ये आ गया ओमेगा, तो भी हम चूज करेंगे y एट टी, यानी ओरिजिनल टाइम सीरीज में टेंथ टाइम पर, 10th यूनिट ऑफ टाइम पर आपका टाइम सीरीज की वैल्यू क्या थी, वो
प्लस 1 माइनस ओमेगा तो डैम्पिंग फैक्टर इनटू स्मूथ टाइम सीरीज का वैल्यू एक स्टेप पहले, इससे एक स्टेप पहले। तो इससे लॉजिकली या इंट्यूटिवली इसका डेरिवेशन हमारे स्कोप में नहीं है, लेकिन इंट्यूटिवली समझोगे कि ये कैसे नई वैल्यूज निकाल रहा है। इसमें देखो, एक तो करंट y की जो, जैसे आप ऐसे लिखते हो ना 1 2 3 4 5 ऐसे करके टाइम की वैल्यूज आती है टाइम सीरीज में, और ये yt की वैल्यू आती है, yt की वैल्यू कुछ भी होती है, a b c वॉट एवर इट इज, जो भी होता है, और उसके अगेंस्ट में हमको st की वैल्यू लेनी है। ठीक है, st की वैल्यू जो है, तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन के हिसाब से st की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब खास बात यह है कि हर एक टाइम सीरीज की, इस स्मूथ टाइम सीरीज की वैल्यू की, जो अभी टाइम सीरीज टी पर जो इसकी वैल्यू है, दैट इज उसके अंदर उसको कैलकुलेट करने के लिए उसका प्रीवियस वैल्यू को भी यूज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो टाइम सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वो अपना मेमोरी में पुरानी वैल्यूज को भी रखता चला जा रहा है। जैसे आप कभी फिबोनाची सीरीज अगर आपने कभी चलाई हो, तो वो कुछ वैसी ही बात है थोड़ी थोड़ी। चलो, अब इसको हम एक्सेल में उसी चीज को करके देखते हैं। तो एक्सेल में भी इसको जो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के लिए अवेलेबल है फंक्शन हमारे पास। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ओके, तो ये आ गया। और डैम्पिंग फैक्टर हमने कहा स्मूथ करना है हमको, सपोज करो 0.2, यानी बहुत स्मूथिंग हो जाएगी 0.2, यानी अब देखते हैं ये ओमेगा है क्या है, 1 माइनस ओमेगा दे रहा है, क्या दे रहा है 0.2, कितना स्मूथ कर रहा है अभी देख लेते हैं। और लेबल्स हैं, चार्ट आउटपुट चाहिए, आउटपुट रेंज, हाँ ठीक है, 0.2, ठीक है। दिस इज डैम्पिंग फैक्टर 1 माइनस ओमेगा है ये, क्योंकि इसने बहुत स्मूथिंग नहीं किया, देख रहे हो, बहुत स्मूथिंग नहीं हुई है। चलो, अब डैम्पिंग फैक्टर बढ़ाएंगे, यानी 1 माइनस ओमेगा बढ़ाएंगे इस बार। ये देखो कितना स्मूथिंग हो गया, देख रहे हो। ये देखो, ठीक है, बहुत सारा रैंडमनेस कम हो गया, ठीक है। और इसके थोड़ा बीच में, एक थोड़ा मिड वे में जाके देखते हैं कि क्या और हमको और इन्फॉर्मेशन और मिल रही हो। यहाँ पर भी ट्रेंड्स हमको दिखने लग गए, और एक फाइनल ट्राई मारते हैं। ये मुझे लग रहा है सबसे अच्छा है। तो डैम्पिंग फैक्टर जो है, यानी 1 माइनस ओमेगा, इस पर हमको सबसे अच्छा दिख रहा है।
और हमको बीच बीच में ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये ऊपर जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर हर थर्ड टाइम पीरियड पे ये ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक एट 0.5 डैम्पिंग फैक्टर हमको ये बहुत अच्छा सा इसमें हमारी स्मूथिंग आ रही है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। इतने में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछें। और आप लोग जो है एक्सरसाइज है आपकी 20.01, इसको चला के देखिए, पढ़ के देखिए। कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कल फिर कर सकते हैं। आज हमारा थ्योरी ऑलमोस्ट एक राउंड कवर हो गया है, थ्योरी हमारा, जिसके ऊपर अभी फिर विल सी कि हम मंडे से क्या स्टार्ट करेंगे। आई गेस हो सकता है पावर बीआई स्टार्ट करें या आर स्टार्ट करें, विल सी। मगर थ्योरी एक राउंड क्लियर हुआ है ये हमारा। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं मंडे से, यस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आपसे इस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, इसी चैप्टर के और कुछ सवाल करना चाहें तो प्रैक्टिस करिएगा। और कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कल डिस्कस करेंगे। हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके। ऑलराइट, चलिए आपकी मूड के बारे में जरा फुर्सत में फोन पे भी बात करेंगे कल जरा क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए कल का फिर क्लास जैसा होता है तो मैं आपको टाइमिंग कल का बताऊंगा। बाय।